Hello friends, how are you all? I hope your preparation for ARS mains is going very well. Today we are going to cover a very interesting and very important and crucial topic for you all, and it is very beneficial for all students across 60 disciplines. तो आज हम जो बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि आखिरकार एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस का जो मेंस पेपर है, हाउ टू सॉल्व दैट मेंस पेपर इन 3 आवर्स। 3 घंटे में वो ARS का मेंस पेपर हम कैसे सॉल्व करें, व्हाट शुड बी अवर अप्रोच एंड हाउ टू मैनेज टाइम, what to write, how to write and how much to write so that you can get very good marks in ARS mains। बहुत सारे बच्चे हमसे प्रश्न पूछते हैं, बार बार उनकी क्वेरीज आती हैं कि आखिरकार ARS मेंस का पेपर 3 आवर्स में इतना लेंथी पेपर हम अटेम्प्ट कैसे करें, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। तो आज हम वही बात करेंगे एपिसोड में। सो इट इज वेरी बेनिफिशियल एंड प्लीज हैव वन कॉपी एंड वन पेन एंड नोट डाउन very important points which I'm going to tell you based on my experiences and based on experiences of my seniors and juniors. Okay, so let's get started. So first let us discuss the importance of mains। जो मेंस पेपर है ये कितना महत्वपूर्ण है। So I can tell you, if you want to get selected as agriculture research scientist in ASRB, ICR, ARS examination, so ARS mains plays the most important role। मेंस बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मेंस में आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं तो आपका इंटरव्यू और फिर फाइनल सिलेक्शन होना के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इफ यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन मेंस एग्जामिनेशन, देयर योर चांसेस फॉर गेटिंग सेलेक्टेड in the final list are getting better, gets enhanced if you get good marks in ARS mains। तो जनरली हम ये कहते हैं, जनरली मैं अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस में कह सकता हूं कि इफ यू कैन स्कोर 180 प्लस मार्क्स then surely you are going to get interview call and your chances are fair enough to get selected। so मैं अपने केस की बात करूं, in my case I secured 184 marks out of 240 in my first attempt, and in interview I got 52 marks out of 60, so 184। and I have seen many juniors, many seniors, they have scored even more than 200 marks। सो आप जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे मेंस में उतना आपको फायदा होगा, क्योंकि इंटरव्यू 60 मार्क्स का है और इंटरव्यू में बहुत वेरी करते हैं मार्क्स। आप 32, 45, 50, 52, 55 तक लोग स्कोर करते हैं। सो अगर आप मेंस में अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं, विच इज इन योर हैंड, विच इज डिपेंड ऑन योर हाई राइटिंग स्किल्स, योर नॉलेज, सो यू कैन गेट एन एज ओवर other students। so okay, so 240 marks is mains and interview 60 marks, and I have already told those who can score very good marks in mains, they have good chances of getting selected। अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं how to solve। अब हम मुद्दे में आते हैं, how to solve this ARS mains in 3 hours। so ARS mains exams consist of 3 important parts। तो पहला पार्ट आप देखेंगे, पहला सेक्शन आप देखेंगे, सो इट कंसिस्ट ऑफ 40 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच, एंड दीज क्वेश्चंस आर बेसिकली फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, small definitions, one liners। so they are very basics and very simple questions where you have to be very quick in answering them। so it consists of 80 marks, 40 questions। this is the first section। second section is quite lengthy, 5 mark questions and 20 questions of 5 marks are there, and it consists of 100 marks। and the third one, the most important, द मोस्ट क्रूशियल, जहां बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिलता है स्टूडेंट के मार्क्स में, आप यहां बहुत अच्छा एज ले सकते हैं और स्टूडेंट्स की अपेक्षा में। सो 10 मार्क्स questions are there and 6 questions will be there, so it will be 60 marks। so 60 plus 100 plus 80, it comes to 240 marks। now the most important questions which a student asks is how to solve these questions, what should be our approach। so according to me, you have to fix time for each section। मैंने यही किया था। so when I appeared for ARS mains, so I fixed time for each section। for examples, 40 short questions, I have fixed 40 minutes, 1 minute for each। कुछ सवाल ऐसे होंगे तो एकदम आपको आ जाएंगे, लाइक डेफिनेशन होगा, द टर्म जेनेटिक्स वाज कॉइन्ड बाय, इस तरह का होगा, द टर्म एक्सटेंशन वाज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड, इस तरह का होगा, तो फटाफट होता जाएगा। कुछ क्वेश्चंस में यू विल इन्वेस्ट ओनली 15 सेकंड्स, इन सम क्वेश्चंस यू विल थिंक एंड यू कैन इन्वेस्ट 45 सेकंड्स। सो अगर हम पूरा एवरेज निकालें, सो यू कैन डिवोट 40 मिनट्स फॉर दीज 40 क्वेश्चंस, नॉट मोर देन दैट। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि जब ये क्वेश्चंस करने लगे तो वन वे में इनको क्वेश्चंस को करते जाइए, 40 क्वेश्चंस को फटाफट करते हुए जाइए। जो नहीं आता उसको हल्का सा मार्क कर लीजिए, ध्यान रख लीजिए कि इसको मैं रिविजिट करूंगा, बट रिविजिट दोज क्वेश्चंस विद इन दैट 40 मिनट्स ओनली।
क्योंकि पेपर इतना लेंदी है. वंस यू गेट टू राइट 5 mark questions and 10 mark questions, then you will not able to come back and to revisit those questions. Now comes 20 questions of 5 marks each. So you can devote, please note down, 1 hour and 20 minutes for this section. It means 4 minutes for each question. हर questions के लिए 4 minutes आप दीजिए, sufficient है. अब आप सोचेंगे, you can think that how I can solve 5 mark question in 4 minutes. That's why I have always given emphasis in your writing skills. So you have good amount of time, still 28 days of November and 10 days of this month. So practice writing. It's important to mug up the facts, it's important to read from the books, but it's more important to have a good habit of writing skills. That's why मैं हमेशा कहता हूँ A4 शीट्स में अपने आंसर्स बनाइए, अपने प्रोबेबल क्वेश्चंस की लिस्ट बनाइए, उनके आंसर राइटिंग कीजिए. तो मैंने 4 मिनट्स एक क्वेश्चन को दिए 5 मार्क्स में, और मैंने 1 hour and 20 मिनट्स में इस सेक्शन को खत्म किया. अब नाउ आउट ऑफ दिस 20 क्वेश्चन इट इज नॉट पॉसिबल दैट यू विल गेट आंसर ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन. ऐसा नहीं हो सकता. एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा, सोचना पड़ेगा, तो उन क्वेश्चन को फटाफट छोड़िए, आगे बढ़ जाइए. लेकिन विद इन दैट 1 hour and 20 minutes उनको रिविजिट कर लीजिए, बिकॉज वंस यू गेट इनटू राइटिंग दोस 10 marks क्वेश्चन, देन यू विल नॉट एबल टू कम बैक. ओके, सो विद इन दैट 1 hour and 20 मिनट्स में ही आपको 5 marks के 20 क्वेश्चन पूरे करने हैं, और अगर जो छोड़े हैं उसी बीच में पूरा करना है. तो आप ये ट्रीट कीजिए कि 5 mark क्वेश्चंस को भी एक छोटा प्रश्न पत्र मान लीजिए, और उसको 1 hour and 20 मिनट्स में ही 20 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. नाउ इंपॉर्टेंट इज हाउ टू राइट अ क्वालिटी आंसर्स, so that in 4 minutes you will able to give a quality answer to that 5 marks question. So please wait for my next video. I will make a separate video on effective answer writing. I will focus in 4 minutes how you can write a very good answer of 5 marks, so that you can get 4.8 4.5 marks out of 5, or even out of 5 of 5 in certain questions. So please note 1 hour and 20 minutes for this section. And now comes the third part, that is 6 questions of 10 marks. So devote 1 hour, full 1 hour for these 6 questions. So 10 minutes for each. In 10 minutes, so दुगना टाइम दिया है मैंने आपको. 4 मिनट हमने 5 क्वेश्चन के सवाल में दिए थे, 5 marks क्वेश्चन के लिए 4 मिनट दिए थे. So for these 10 marks questions I am giving you 10 minutes. So even more than twice the time of 5 mark questions. So 10 minutes में आप क्वालिटी आंसर 10 marks का बिल्कुल लिख सकते हैं, और 6 क्वेश्चंस को आप उस तरह से अटेम्प्ट कीजिए. बहुत सारे बच्चे, आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स हु फर्स्ट ओपन द क्वेश्चन पेपर, दे आर फुल ऑफ एंजाइटी, सो दे जो भी आता हुआ दिखा उसको स्टार्ट करते हैं. नो, सो हियर प्लीज नोट डाउन दैट यू हैव टू स्टार्ट questions from these 40 short questions only. Why I am saying this? Because we all are humans, we all have human brain, and when you enter your examination hall you are full of anxiety, nervousness भी होती है, थोड़ा confidence build करना होता है, थोड़ा हाथ का जब पेन चलना शुरू होता है तो शुरू में अटकता है. So it's always better you solve 40 marks question first, because बहुत सारे questions ऐसे होते हैं जो रट्टाफिकेशन मगअप करके आप आए होते हैं. तो 40 mark question फटाफट सॉल्व कर लेंगे, याद रहेगा ताजा ताजा, आप तुरंत लिख लेंगे, तो आपको बहुत फायदा होगा, और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा कि आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस आपने 37 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर लिए, या 35 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर लिए, और 5 में से 2 तो ठीक हो ही जाएंगे. इस तरह का फील आने लगता है अगर आपने अच्छी तैयारी की है. सो इन 40 शॉर्ट क्वेश्चंस में अपने केस की बात करूं, सो आउट ऑफ दिस 40 आई अटेम्प्टेड 40, और जिसमें से मुझे श्योर था कि 37 मेरे बिल्कुल ठीक है. राइट, सो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, एक बूस्टअप मिलता है. राइट, सो 40 मार्क्स क्वेश्चन कीजिए, और आपने जो याद किया होता है ताजा ताजा तुरंत लिखने के लिए अच्छा होता है. तो डोंट अटेम्प्ट 5 मार्क्स और 10 मार्क्स इन द इनिशियल स्टेज. सो फर्स्ट अटेम्प्ट 40 मार्क्स, then I will suggest then attempt 5 marks questions. 1 hour and 20 minutes you devote 5 mark questions and attempt that. उसको पूरा कर लीजिए, बिकॉज बहुत लेंदी पार्ट है वो, 20 क्वेश्चंस है, बाद में आप कवर करना बड़ा मुश्किल होता है. और एक भी सवाल आपके इस एग्जाम में छूट गया तो इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, लिमिटेड सीट्स हैं, आप जानते हैं. सो इट इज बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर. सो अटेम्प्ट 5 मार्क क्वेश्चन इन सेकंड को, एंड इन थर्ड को इत्मीनान से 1 आवर में 6 क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिए, ताकि आप 10 में से 8.5 9 9.5 ऐसा स्कोर्स कर सकें. इनके आंसर कैसे लिखने हैं, हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, केस स्टडी, एग्जाम्पल, हाउ टू ड्रॉ डायग्राम्स, हाउ टू मेक फ्लो चार्ट, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में. एक बार और रिवाइज करते इस बात को. 3 segments, please devote a separate time, 40 minutes for first part, 1 hour and 20 minutes for second part, and 1 hour for third part. Attempt these parts in the way they are set in question paper. अब हम इसको समराइज करते हैं आज के सेशन को, जो मैंने सजेशन आपको दिए. सो प्लीज नोट डाउन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेरी क्रूशियल. आई एम टेलिंग यू विद बेसिस ऑन माई एक्सपीरियंसेस. फर्स्ट इज राइट ओनली व्हाट इज बीइंग आस्क्ड.
बहुत बार हम देखते हैं क्योंकि 4 मिनट्स में हमें एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, 10 मिनट्स में हमें एक 10 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो जो पूछा गया है, व्हाट द क्वेश्चन पेपर सेटर हैज आस्क्ड यू, व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन दैट क्वेश्चन, यू हैव टू राइट इट ओनली। ठीक है, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ दे हैव आस्क्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन, राइट डाउन प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन, तो थोड़ा सा आप डिफाइन कर सकते हैं एक्सटेंशन को कि एक्सटेंशन इज अ प्रोसेस, 2 लाइंस में, बट नॉट मोर देन दैट। उसके पीछे की कहानी नहीं लिखनी, जो पूछा है वही लिखना है। सो पहला प्लीज नोट कीजिए, राइट ओनली व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। सेकंड, यू शुड बी ब्रीफ, बहुत ज्यादा नहीं लिखने की कोशिश करनी, बहुत ज्यादा पैराग्राफ नहीं बनाने, आपने टू द पॉइंट आंसर लिखना है, क्लियर लिखना है, ब्रीफ लिखना है, विद फ्लो डायग्राम्स लिखना है, विद एग्जांपल्स लिखना है, विद कंक्लूजन्स लिखना है। तो इसके लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो भी देखिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 5 मार्क्स का आइडियल आंसर कैसा होना चाहिए, 10 मार्क्स का आइडियल आंसर कैसा होना चाहिए, विद एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊंगा और 2-3 मॉडल आंसर आपको मैं दिखाऊंगा। राइट, थर्ड क्वेश्चन, जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि जो स्पेस आपको आंसर कॉपी में प्रोवाइड किया जाता है उसको पूरा भरे, कितना छोड़ें, ये जरूरत कितना किया जाए। सो मेनी स्टूडेंट आस्क दिस क्वेश्चन, सो हाउ टू फिल दैट स्पेस गिवन बाय एग्जामिनेशन। सो देयर इज नो नीड टू फिल द होल स्पेस given in your question paper. You need not to fill each and every given space. 10 to 15% of that space can be left depending on how much quality answer you have written. So next point is, do not leave any question. This is very important, very crucial to note that you cannot afford to leave any questions in this ARS mains exam because very cutthroat competition is there. So in my case, I was not knowing even a hint of one question. एक fish bowl technique हमारे एक्सटेंशन में होती है, ट्रेनिंग टेक्निक होती है, उस समय मुझे नहीं पता था। So there was a 5 mark question of describe fish bowl technique. तो मुझे बिल्कुल नहीं इसका आंसर आता था। दैट वाज द ओनली क्वेश्चन जहां मैं बहुत स्ट्रगल किया कि क्या लिखूं, बट आई वाज नोइंग द बैकग्राउंड दैट इज अ ट्रेनिंग टेक्निक। तो कुछ तो मैंने उसमें लिखा कि ट्रेनिंग टेक्निक है, थोड़ा बहुत लिखा, तो उसमें हो सकता है मुझे 0.5 मार्क्स मिला हो, तो जो भी मिल जाए वो एडेड एडवांटेज ही है। सो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, सिलेबस में कोई भी टॉपिक ऐसा ना रहे जो अनछुआ रह जाए, कम से कम एक बैकग्राउंड आइडिया आपको जरूर होना चाहिए ताकि यू कैन राइट समथिंग। सो इवन आप जहां 0 स्कोर कर रहे थे वहां अगर आपको 1 मार्क्स भी मिलता है तो ये आपके लिए एडेड एडवांटेज होता है। सो डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन, अप्लाई योर माइंड एंड अटेम्प्ट एनीवे। Do not attempt 5 marks question first or 10 mark question first and then 40 questions. No, you should attempt in the same sequence it is given is jams, 40 marks questions, then 5 mark questions and then 10 marks questions. बिल्कुल सही पैटर्न में पेपर सेट किया गया है। Make your answer attractive. Now, why I am saying this? Because at the end your copy will travel to the examination. You will not go. How much knowledge you have, it does not matter. But what you have written in your answer paper, it's matter. UPSC की कोचिंग में भी आंसर राइटिंग स्किल्स पे ही फोकस कराते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, राइट? सो यू शुड हैव अ वेरी गुड हैंड राइटिंग। मैं ऐसा तो नहीं कहता कि बहुत सजीली, बहुत सजावटी होनी चाहिए, पर पढ़ने में आनी चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। सो यू शुड वर्क ऑन योर हैंड राइटिंग ऑल्सो, इट्स गिव एडेड एडवांटेज। ये मैं और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे देवाशीष है, बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में लिखता है, मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है, तो इसका बहुत एडेड एडवांटेज हम लोग हार्नेस करते हैं। कम से कम एक आहा मोमेंट तो कॉपी में होता है, एग्जामिनर के पास जाता है, सुंदर अच्छे साफ शब्दों में अच्छा लिखा होता है, तो एक इंप्रेशन पड़ता है। यू आर मेकिंग हिज टास्क ऑफ चेकिंग द कॉपी ईजियर। सो एक एज अ ह्यूमन बीइंग हर किसी को इफेक्ट पड़ता है कि इसकी हैंड राइटिंग कितनी अच्छी है, तो एक एडेड एडवांटेज तो होता है, राइट? क्लियर हैंड राइटिंग। ब्लू एंड ब्लैक पेन का इस्तेमाल करने के लिए मैं आपको सुझाव दूंगा, यूज ब्लू एंड ब्लैक पेन फॉर हेडिंग्स एंड ब्लू पेन फॉर द कंटेंट राइटिंग। मैंने किया था। अब 2 पेन का इस्तेमाल करना, बिकॉज नाउ डेज वी आर वेरी डिपेंडेंट ऑन लैपटॉप्स एंड ICT मीडियम एंड वी हैव फॉरगॉट हाउ टू राइट, राइट? सो इसलिए आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। सो मेरी आदत हमेशा ब्लू एंड ब्लैक पेन की रही है, तो हम हेडिंग्स ब्लैक से डालते हैं और सब हेडिंग्स ब्लैक से डालते हैं, ब्लू से उसका आंसर लिखते हैं। जो अच्छा इंपॉर्टेंट हम चाहते हैं कि एग्जामिनर्स पॉइंट को पढ़े उसको ब्लैक से अंडरलाइन करते हैं। सो अपने आंसर को अट्रैक्टिव बनाते हैं। सो इन नेक्स्ट सेशन आई विल शो यू हाउ टू राइट गुड इफेक्टिव आंसर्स, उसमें मैं आपको सैंपल आंसर्स भी दिखाऊंगा। Now, very important point is you should write an answer not as an student but as an expert, because you are expected to become scientist after clearing the examination. So you should write your answer as an expert, as a scientist, give your opinions, give your suggestions, give case studies, give references. ये देना बहुत महत्वपूर्ण है। ये अगले वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि एक आंसर में, एक आइडियल आंसर में क्या क्या होना चाहिए। सो ये इंपॉर्टेंट है कि आपका जो दृष्टिकोण होना चाहिए लिखने का, वो एक स्टूडेंट करना होके एक एक्सपर्ट का होना चाहिए, right? And if next important point is you will not get time to come back.
अगर आपने 5 मार्क क्वेश्चन में कोई छोड़ दिया और आगे बढ़ गए और 1 आवर एंड 20 मिनट्स में उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, तो मुझे नहीं लगता कि आप जब 10 क्वेश्चन मार्क्स का अटेम्प्ट कर लेंगे उसके बाद रिविजिट कर पाएंगे। बहुत लंबा पेपर है, 3 आवर्स में आपको इतना सब कुछ करना है। सो इसलिए स्ट्रिक्टली टू द पॉइंट चल के विद इन दैट टाइम फ्रेम यू हैव टू कंप्लीट दोज आंसर्स, राइट। रीड केयरफुली, स्पेशली 40 क्वेश्चंस। बहुत बार जल्दीबाजी में हम लोग हड़बड़ी में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि इसका आंसर क्या था। सो वी राइट आंसर्स विच आर रॉन्ग बट हाउ एवर वी वर नोइंग द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। फिर बाद में कटिंग करते हैं, ओवर राइटिंग लिखा रहता है एंड देयर वाज क्लियरली रिटन दैट राइटिंग एंड ओवर कटिंग विल फेच यू नेगेटिव मार्क्स और यू विल नॉट गेट मार्क्स ऑफ दैट क्वेश्चन। सो अवॉइड करना है 40 मार्क्स को बड़ा सिंसियरली। दैट्स वाई आई एम गिविंग एम्फेसिस कि आप एग्जाम में बैठे और सबसे पहले 40 मार्क्स क्वेश्चन 40 क्वेश्चंस को कीजिए 80 मार्क्स के, ठीक है। नाउ एक बार समराइज करते हैं इन पॉइंट्स को। 80 मार्क्स में से आपका टारगेट होना चाहिए फर्स्ट सेक्शन में कि मोर देन 70 आप स्कोर करें। बिल्कुल मोर देन 70 यानी 35 क्वेश्चंस तो आपके आप 40 में से सही होने चाहिए। 5 का हम आपको स्कोप देते हैं, राइट। इतनी तैयारी तो आपकी होनी चाहिए। देन 100 मार्क क्वेश्चंस यानी 5 मार्क्स क्वेश्चंस में आपको 80 प्लस आंसर मार्क्स स्कोर करने चाहिए, 80 प्लस, राइट। ये आपका टारगेट होना चाहिए। देन 60 मार्क्स यानी 10 मार्क क्वेश्चन में आपको 45 प्लस स्कोर करना चाहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए। सो व्हेन वी काउंट 70 प्लस 80 प्लस 45 इट कम्स 195 एंड 195 200 तक आप एक्सपेक्ट करेंगे तो आपके 180 प्लस तो आराम से आएंगे। क्योंकि मैंने जब अपना एनालिसिस किया था तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 190 प्लस मेरा स्कोर होगा, 190 195 ऐसे स्कोर होगा एंड आई गॉट 184 मार्क्स। सो लगभग 6 मार्क्स कहीं और कट हुए होंगे मेरे, बिकॉज मेनी टाइम्स वी थिंक दैट वी हैव रिटन गुड आंसर्स बट इन द व्यू ऑफ एग्जामिनर और कॉपी जो चेक करते हैं वो समझते हैं कि ये गलत बात है तो काट लेते हैं पॉइंट। सो ऑलवेज गो ऑन अ हायर साइड, है ना। तो हायर साइड को चलते हुए 195 मार्क्स आपको 200 मार्क्स के आसपास टारगेट करना चाहिए, तो 180 प्लस आपके मार्क्स आएंगे। और इंटरव्यू के लिए मेरा एक वीडियो है, मैं उसका लिंक शेयर करता हूं आपको पूरा। हमने उसमें आपको ARS के इंटरव्यू कॉल की शीट कैसे भरनी है, जो वो इंटरव्यू से पहले प्रोफॉर्मा भराते हैं वो कैसे भरना है, इंटरव्यू कैसे देना है, आपका एटीट्यूड कैसे चेक किया जाएगा, आपका सब्जेक्ट मैटर कैसे चेक किया जाएगा, पूरा एक फुल फ्लेज वर्कशॉप हमने पंतनगर यूनिवर्सिटी में कराई थी। उसका वीडियो एसएस डला हुआ है और स्पेशल वीडियो में ऐसे ही फोकस वीडियो और भी बनाता रहूंगा, तो उसका डिस्क्रिप्शन लिंक इसमें दिया गया है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। और जो मैंने और ARS की वीडियोस अपने एक्सटेंशन डिसिप्लिन एंड रिलेटेड टू अदर 60 डिसिप्लिन जो बनाए हैं वो भी लिंक मैंने इसमें शेयर किए हैं। और मेरे नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वालिटी आंसर राइटिंग फॉर 5 मार्क्स एंड 10 मार्क्स बताऊंगा एंड दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आप आखिरकार समझ पाएंगे कि आंसर कैसे लिखना है। नॉलेज तो हमने ले लिया, रट्टा हमने बहुत मान लिया, लेकिन आंसर कैसे उतारना है पेज पे, कैसे उसको अपनी हैंड राइटिंग को बूस्ट करना है, कैसे अपना राइटिंग स्किल्स बूस्ट करना है, ये मैं आपको अगले वीडियो बनाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। सो आई होप टुडेज वीडियो विल बी वेरी यूजफुल। आप अगर इस स्ट्रेटेजी के साथ चलते हैं तो आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू स्कोर मोर देन 180 मार्क्स एंड यू विल गेट श्योरली इंटरव्यू कॉल एंड यू आर गोइंग टू गेट थ्रू दिस एग्जामिनेशन।